हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ प्योर सब्सटेंस? आंसर, अ मटेरियल दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. All the constituent particles of a pure substance have same chemical nature. तो क्वेश्चन 2 है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड heterogeneous mixtures. So, homogeneous mixtures have uniform composition. It has no visible boundaries of separation between its constituents. Example, salt in water, sugar in water, copper sulfate in water. Heterogeneous mixtures have non-uniform composition. It has visible boundaries of separation between its constituents. Example, sodium chloride and iron filings, salt and sulfur. पेज नंबर 18 का क्वेश्चन 1 है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स विद एग्जाम्पल. सो आंसर है, a homogeneous mixture is a mixture having a uniform composition throughout the mixture. For example, mixtures of salt in water, sugar in water, copper sulfate in water, iodine in alcohol, alloy, and air have uniform compositions throughout the mixture. On the other hand, a heterogeneous mixture is a mixture having a non-uniform composition throughout the mixture. For example, composition of mixtures of sodium chloride and iron fillings, salt and sulfur, oil and water, chalk powder in water, wheat flour in water, milk and water are not uniform throughout the mixtures. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वो कंप्लीट हो चुका है. सेकंड क्वेश्चन, हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हमें इसमें डिफरेंस बताना है सोल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन में. तो सोल, दे आर हेटेरोजेनियस इन नेचर. सॉल्यूशन, दे आर होमोजेनियस इन नेचर. सस्पेंशन, दे आर heterogeneous in nature. They scatter a beam of light and hence show Tyndall effect. They do not scatter a beam of light and hence do not show Tyndall effect. They scatter a beam of light and hence show Tyndall effect. They are quite suitable. Example of solution are salt in water, sugar in water. Example of suspensions are sand in water, dusty air. तो आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं. To make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 K. K का मतलब है Kelvin. Find its concentration at this temperature. हमें इसकी कंसनट्रेशन बतानी है इस टेम्परेचर पे 293 केल्विन पे. तो मास ऑफ सोल्यूट सोडियम क्लोराइड है हमें दिया हुआ है 36 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम वो भी दिया हुआ है. देन मास ऑफ सोल्यूशन का क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. तो हम 36 और 100 ग्राम को प्लस कर देंगे तो 136 ग्राम मिलता है. और मास ऑफ सोल्यूट बाई में मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100. तो इसका टेम्परेचर निकालने के लिए फिर हम इसको पुट कर देंगे 36 बाई 136 इंटू 100%. तो इसका आंसर आ जाएगा 26.47%. पेज नंबर 24 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल? Difference in their boiling points is more than 25 degrees Celsius. Which are miscible with each other? आंसर है,
Kerosene and petrol are miscible liquids. Also, the difference between their boiling point is more than 25 degrees Celsius, so they can be separated by the method of distillation. ये इसका ग्राफ है, एक डायग्राम जिसे हम कहते हैं, आप ये बना सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी पेपर्स में भी, जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे। तो इसमें बता रखा है, इन दिस मेथड द मिक्सचर ऑफ कैरोसिन एंड पेट्रोल इज टेकन इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क विद अ थर्मामीटर फिटेड इन इट। वी ऑल्सो नीड अ बीकर, अ वाटर कंडेंसर एंड अ बंसन बर्नर. The apparatus is arranged as shown in the above figure. Then the mixture is heated slowly. The thermometer should be watched simultaneously. Kerosene will vaporize and condense in the water condenser. The condensed kerosene is collected from the condenser outlet, whereas petrol is left behind the distillation flask. Question 2. Name the technique to separate first butter from curd by centrifugation. Second है salt from seawater by evaporation. थर्ड है camphor from salt by sublimation. ये इनको सेपरेट करने की टेक्निक है। थर्ड क्वेश्चन है, what type of mixtures is separated by the technique of crystallization? Answer, the crystallization method is used to purify solids. 1. Classify the following as chemical or physical changes. तो फर्स्ट है कटिंग ऑफ ट्रीज, तो वो है फिजिकल चेंज। सेकंड, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, वो भी फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ एन अलमीरा, केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर to form steam, physical change. Passing of electric current through water and water beaker down into hydrogen and oxygen gas, ये है chemical change. Dissolving common salt in water, physical change. Making a fruit salad with raw fruits, physical change. Burning of paper and wood, ये हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज। तो एक्सरसाइज पेजेस पे आ चुके हैं हम, पेज नंबर 28, जिसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। आइए वो भी करते हैं। क्वेश्चन 1, विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग? ए, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, इसके लिए हम कौन सी टेक्निक अप्लाएंगे? इवेपोरेशन की। बी है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो इसके लिए आ जाएगी हमारी टेक्निक सब्लिमेशन। सी है स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार, तो इसकी टेक्निक है फिल्टरेशन और सेंट्रीफ्यूजेशन और डिकेंटेशन। डी, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, तो इसका हमारी टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। ई, बटर फ्रॉम कर्ड, तो इसकी है सेंट्रीफ्यूगेशन। एफ है ऑयल फ्रॉम वाटर, इसकी टेक्निक है यूजिंग सेपरेटिंग फनल। जी, टीज लीव्स फ्रॉम टी, इसकी टेक्निक है अगर हमें टी लीव्स हमें टी से अलग करनी है तो फिल्टरेशन। और एच, आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, मैग्नेटिक सेपरेशन। आई है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, विनोइंग। फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, सेंट्रीफ्यूजेशन। सेकंड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन इसको अगर आप लिख के आएंगे पेपर में, काफ़ी ज़्यादा इसमें हाई चांसेस हैं कि आपको फुल नंबर मिले। 3 नंबर के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी। यूज़ द वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिसोल्व, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, फिल्टरेट एंड रिसाइड्यू। आंसर है फर्स्ट, टेक वाटर। First, water is taken as a solvent in saucer pan. This water solvent is allowed to boil. During heating, milk and tea leaves are added to the solvent as solutes. मिल्क और
चाय के पत्ते डाले गए हैं सोल्यूट्स के रूप में सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट हमारा वाटर है। दे फॉर्म अ सॉल्यूशन, देन द सॉल्यूशन इज पोर्ड थ्रू अ स्ट्रेनर। द insoluble part of the solution remains on the strainer as residue. Sugar added to the filtrate which dissolves in the filtrate. The resulting solution is the required tea. So third question है हमारा, Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data as given below. Results are given in the following table as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution. तो इसका आंसर हमें एक टेबल बनानी होगी। तो एक जगह हम लिखेंगे सब्सटेंस डिसॉल्व्ड। तो सब्सटेंस कौन से हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। और टेम्परेचर इन के का यहाँ पे मतलब है केल्विन। सो यहाँ पे हमारे टेबल दी हुई है 283। तो इसमें से 21 पोटेशियम नाइट्रेट के हैं, 36 सोडियम क्लोराइड के, 35 पोटेशियम क्लोराइड के और 24 अमोनियम क्लोराइड के। इसी तरह जैसे कि 293 में भी दी हुई है ये टेबल, 313 में भी, 333 में भी और 353 में भी। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और ये लर्न करने पर ही समझ में आएगी। तो ये टेबल उन्होंने दी हुई है, तो हम इसका क्वेश्चन हमने अगर ये लर्न हो गई तो ये सारे क्वेश्चन हमें आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। तो इसका आंसर है, Since 62 gram of potassium nitrate is dissolved in 100 gram of water to prepare a saturated solution at 313 Kelvin, 31 gram of potassium nitrate should be dissolved in 50 gram of water to prepare a saturated solution at 313 Kelvin. So B है, Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? Explain. तो इसका आंसर है, the amount of potassium chloride that should be dissolved in water to make a saturated solution increases with temperature. Thus, as the solution cools, some of the potassium chloride will precipitate out of the solution. C. Find the solubility of each salt at 293 Kelvin. What salt has the highest solubility at this temperature? तो हमें यही solubility दी हुई थी उस टेबल में, तो हम उस टेबल में से देख के भी ये कर सकते हैं। और अगर आप ये क्वेश्चंस लर्न करेंगे तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। बहुत ही ध्यान से लगा कर ये बनाए गए हैं क्वेश्चंस। सो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो डी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ साल्ट? तो इसका आंसर है, द सोल्यूबिलिटी ऑफ साल्ट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो इसमें ये इफेक्ट होगा हमारे। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। हमें इनको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। तो फर्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका आंसर है, सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved as a particular temperature is known as saturated solution. Example है, aqueous solution of sugar, no more sugar can be dissolved at room temperature. B. Pure substance. Answer है, a pure substance is a substance consisting of a single type of particles. That is, all constituent particles of the substance have the same chemical properties. For example, water, sugar, salt, etc. C. Colloid. Answer है, a colloid is a heterogeneous mixture whose particles are not as small
as solution, but they are so small that cannot be seen by naked eye. When a beam of light is passed through a colloid, then the path of the light becomes visible. For example, milk, smoke, etc. तो डी है सस्पेंशन। तो अ सस्पेंशन हमें बताना है, तो अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच सॉलिड्स आर dispersed in liquids. The solute particles in suspension do not dissolve but remain suspended throughout the medium. For example, paints, muddy water, chalk water mixtures, etc. अगला है classify each of the following as a homogeneous mixture or a heterogeneous mixtures. तो हमारे पास दिए हुए हैं सोडा वाटर, वुड, एयर, सोइल, विनेगर और फिल्टर्ड टी। तो होमोजेनियस मिक्सचर हैं सोडा, वाटर, एयर, विनेगर, फिल्टर्ड टी। हेटेरोजेनियस मिक्सचर हैं वुड और सॉइल। और हमें यहाँ पे नोट करना है प्योर एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर बट पोल्यूटेड एयर इज़ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये छोटी छोटी चीज़ हैं, ये पेपर्स में आ सकती हैं एग्ज़ाम्स में, तो आप इनको ध्यान से करिए। इसको लिख लीजिएगा, इसको भी। प्योर एयर इज़ अ होमोजेनियस एयर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि एयर सिर्फ इसमें एयर कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि प्योर है या फिर पोल्यूटेड है, तो इसलिए हमने इसको होमोजेनियस मिक्सचर में लिया है। सिक्स्थ है हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर। आंसर है टेक अ सैम्पल ऑफ कलरलेस लिक्विड एंड पुट ऑन स्टोव। इफ़ इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एग्जैक्टली एट 100 डिग्री सेल्सियस देन इट इज़ प्योर वाटर। क्योंकि हमें पता है कि प्योर वाटर जो होता है वो 100 डिग्री पर बॉयल होना स्टार्ट होता है। Any other colorless liquids such as vinegar always have different boiling point. Also observe carefully that after some time whole liquid will convert into vapor without leaving any residue. तो क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। हम किस किस मटेरियल को प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में लाएंगे। तो फर्स्ट है आइस, फर्स्ट है आइस, डी है मिल्क, सी है आयरन, डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे ऐसे ये आगे हैं। तो इसका आंसर है द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। इनमें से हमें बताना है कौन कौन सा प्योर सब्सटेंस है। तो आइस है ए, सी है आयरन, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ई कैल्शियम ऑक्साइड, एफ मरकरी। तो इसमें जितने दिए गए हैं सिर्फ यही प्योर सब्सटेंस है, बाकी प्योर सब्सटेंस नहीं है। एट्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमोंग द मिक्सचर्स अमोंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। तो ए सॉइल, बी सी वाटर, सी एयर, डी कोल एंड ई सोडा वाटर। तो आंसर है द फॉलोइंग मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। बी सी और ई। बी सी वाटर, डी एयर और ई सोडा वाटर। क्वेश्चन 9 विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडाल इफेक्ट। साल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। तो आंसर है टिंडाल इफेक्ट इज शोन बाय कोलोडियल सॉल्यूशन। हेयर मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन आर कोलोइड्स, देयरफॉर मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशंस विल शो टिंडाल इफेक्ट। 10th है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो इसका आंसर है एलिमेंट्स हमारी हैं सोडियम, सिल्वर, टीन और सिलिकॉन। कंपाउंड्स है कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मिक्सचर है सोइल, शुगर, कोल, एयर, सोप एंड ब्लड। जो हमारे पास इतने एम तक दिए गए हैं ये सारे, इनको हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स में डिवाइड कर दिया है। 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। तो इनमें से हमें बताना है जो हमारे पास जी तक दिए हुए हैं इनमें से कौन सा केमिकल चेंजेस है। तो हम इसमें कह रखा है ए ग्रोथ ऑफ प्लांट, बी रस्टिंग ऑफ आयरन, डी कुकिंग ऑफ फूड, ई डाइजेशन ऑफ फूड और जी बर्निंग ऑफ अ कैंडल आर केमिकल चेंजेस। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। प्लीज़ फ्रेंड्स इसमें मेरी बहुत हेल्प मिलेगी, और अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू and have a nice day.